हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 जो है सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी जो चैप्टर है हेजमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल्स, यानी चैप्टर जो है थर्ड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से चैप्टर। यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू पे। और इसमें हर एक पहलू जो अब तक आपने नहीं जाना है, हम उस पर विचार करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next 9th question is the most important here. Assess the new or world order. This is important. New world order which emerged after the collapse of the Soviet Union. This is important questions here. Assess the new world order which emerged after the collapse of the Soviet Union. This is important. The sudden disintegrations of Soviet Union surprised all of the USA hegemony began in the 1991. There is Soviet Union surprised all their USA hegemony began to the 1991 after the degradations of Soviet Union from the international sense. This is the most important here. The Soviet Union surprises all the hegemony of USA for 1991, and this is the most important for here. And second year, in August 1990, Iraq invaded Kuwait, occupied and annexed it. United Nations tried to convince Iraq to quit its aggression, but the UN failed to be convinced. Then the UN mandated the liberations of Kuwait by the force. The USA President George H.W. Bush held their emergence of new world order. This is important here. First of all here, the USA convention for the Iraq from the Kuwait occupy, and there is a not understanding here. So the USA President George W.H. Bush is held to emerge of the new world order. This is an important point. And third year, in a response to be this, there was an emergence of war, which has come to be now as a First Gulf War. This is important. There are First Gulf War in this, and this is war is a hug the coalition's force from almost 24 countries fought against Iraq. This is the most important here. 34 countries fought against the Iraq here, and this war is a fight under the code name of Operation Desert Storm, and this operation was the UN was mostly American, and there was about 75% of force from the USA. This is important. Operation Desert Storm, there is a name code of here, and there is a mostly of American participant in this action, and there is 70% force of here USA. The first Gulf War revealed that there was a technological gap that has opened up between to the US military force and other country, but this use of smart bomb made it a computer war, and spared television coverage made it a video game war. You know that this is important. This time there is here a war of the video game live, and there is a coverage for the television here of the war. That's an important point here.
अगर हम आगे बात करें 9वां क्वेश्चन को तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अगर पिछला आपने 8 क्वेश्चन अगर अच्छे से याद कर लिया है तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि बात यहाँ पर वही है, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर बदला हुआ है। तभी मैं कहता हूँ अगर आप कुछ क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी बताया गया है कि सोवियत संघ के पतन के बाद उभरी नई विश्व व्यवस्था का आकलन करें। कि आपको पता है जब सोवियत संघ का पतन हो गया था तो उस समय नई विश्व व्यवस्था कैसे स्थापित हुई, उस समय किस प्रकार का जो है पूरे विश्व में व्यवस्था स्थापित हुई जब सोवियत संघ विघटित हो गया। तो जनरल सी बात, इसका तो आप साफ शब्दों में अब आंसर समझ में आ ही गया होगा कि इसमें अमेरिका का विश्व और बढ़ गया। अमेरिका ने अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए हर तरह से जो है संभव कोशिशें की, तो यही आंसर होगा। अब देखिए आंसर पे में एक नज़र डाल लेते हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद उभरी नई विश्व व्यवस्था का आकलन करें। तो इसका आंसर यही होगा साफ शब्दों में कि सोवियत संघ के अचानक विघटन से सभी चौंका दिया, क्योंकि ये विघटन कोई आम नहीं थी। क्योंकि देखा जाए तो उस समय 2 ही पावरफुल जो है देश थे, एक तो अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। लेकिन सोवियत संघ के अचानक विघटन हो जाने के कारण पूरा विश्व जो था चौंक गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर 1951 में सोवियत संघ विघटन के बाद अमेरिका का आधिपत्य शुरू हुआ, यानी वर्चस्व और बढ़ गया। 1951 में सिर्फ पूरे विश्व में अमेरिका ही जो था रह गया, बाकी सारा जो था विघटित हो गई। तो जनरल सी बात है, यहाँ पर अमेरिका का आधिपत्य यानी वर्चस्व बढ़ गया। तो ये काफ़ी अमेरिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर बात आगे करें तो कहते हैं अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय के अंतराल में, क्योंकि इसमें 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया और संयुक्त राष्ट्र ने इराक को अपनी आक्रामकता छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश भी की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक को जो है बहुत ही कोशिश की कि जो उन्होंने कुवैत को अपने अंडर किया है उसको जो है सम्मानपूर्वक छोड़ दे, लेकिन इराक ने ऐसा नहीं किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र समझाने में विफल रहा और कुवैत जो है इराक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब संयुक्त राष्ट्र ने बलपूर्वक कुवैत की मुक्ति का आदेश दिया तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के उद्भव की सराहना की। क्योंकि ये बात सराहना करने की इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि उस समय अमेरिका ने बहुत कोशिश किया इराक को जो है कुवैत को छोड़ देने के लिए, लेकिन जब इराक नहीं माना तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है उसको बलपूर्वक छुड़ाने के लिए जो है एक जो है नई कोशिशें की, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया गया। अब देखा जाए तो इसमें अमेरिका का अपना हित भी था। अमेरिका चाहता था कि उस समय पूरा विश्व जो है उसकी प्रभुता को माने, और जनरल सी बात है इसमें माना भी गया। इसका कारण जो है तीसरा पॉइंट भी आपको साफ कर देगा कि इसके जवाब में युद्ध का उद्भव हुआ, जिसमें प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी पहला गल्फ वॉर जो था इन्हीं कारण से हुआ, तो इसको प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया। और इस युद्ध में लगभग 34 देशों की विशाल गठबंधन सेनाओं ने इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब देखिए जब अमेरिका के साथ 34 देशों की विशाल संगठन थी तो इसका मतलब है कि अमेरिका का वर्चस्व यहाँ पर बोलबाला हो गई, यानी अमेरिका के वर्चस्व को बोलबाला हो गई और अमेरिका अपने आप में जो है विश्व के समक्ष खड़ा हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी अमेरिका के लिए। देखा जाए तो इराक और कुवैत की जो आक्रमण थी वो इसके जो है आगे आने के लिए सुनहरा अवसर दे दिया, और इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से भी जाना गया, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यही होता कि विश्व जो है नई व्यवस्था का जो है जन्म हुआ, नई विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें जो है अमेरिका का सब प्रभु सत्ता थी और वर्चस्व भी था, और इसमें जो है बढ़ चढ़ के कई देशों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि इतना सारा देश होने के पश्चात भी यहाँ पर अमेरिका का वर्चस्व बना रहा। आखिर क्यों बना रहा, किस लिए बना रहा? आप ये सोचोगे कि इतना सारे देश, तो इस सारे देश के सैनिक अधिक होंगे, लेकिन आपको हैरानी होगा कि इसमें जो है 34 देशों में सैनिक जो थे सिर्फ 25% ही थे।
अब सोचिएगा कि सब 75% किसकी थी। तो ये आपको चौथा पॉइंट जो है साफ कर देगा आपके नज़रियों को। और इस बात के अंतर्गत चौथी पॉइंट यही बताता है कि जब युद्ध ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के कोड नाम से लड़ा गया, यानी इस युद्ध को जो है ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के नाम से लड़ा गया, और यूएनए का ये ऑपरेशन ज़्यादातर अमेरिकी था। वहाँ लगभग 75% सेनाएँ अमेरिका की थी। अब देखिए यहाँ पर 34 देशों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनका सिर्फ 25% ही सेना थी, और सबसे अधिक सैनिक जो थी अमेरिका की थी। अमेरिका इसलिए इसमें इतना सैनिक झोंक दिया कि उस समय अमेरिका का वर्चस्व कायम रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूरा विश्व भी जान ले कि जो है अमेरिका काफ़ी पावरफुल है, और इसलिए उसने जो है अपना 75% सैनिकों को जो है इस जो है ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म में उतार दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इस युद्ध को जर्नली सी बात है, इस विशाल युद्ध को हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगर आ जाए आपको गल्फ वार क्या है या प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, तो आप इसी क्वेश्चन को अगर लिख देते हो तो आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे देखा जाए ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म हो, चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाहे गल्फ वॉर हो, ये तीनों क्वेश्चन का जो है मिला जुला रूप ही यही है। इसलिए अगर आप इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो बेखूबी आप तीनों आंसर का जवाब देने के लिए अप्लीकेबल हो जाते हो। देखिए, ये देश जो था इराक पर अमेरिका ने कब्जा करने के लिए एक युद्ध लड़ी, और इस युद्ध में जो था उसने जो युद्ध लड़ी गई उसको ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के नाम से जाना गया। ठीक है, ये एक तरह का कोड था, ये एक तरह का सैनिक कोड था, यानी ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म जो थी एक तरह का कोड था। अब देखा जाए तो इस युद्ध को क्या कहा गया, इस युद्ध को यहाँ पर खाड़ी युद्ध का नाम दिया गया, यानी गल्फ वॉर कहा गया। और इससे क्या जन्म लिया, इससे न्यू जो है वर्ल्ड ऑर्डर जन्म लिया। तो हो गया ना, इसी क्वेश्चन के सारे अंतर्गत आ गए। तभी कहता हूँ ना, अगर एक क्वेश्चन को आप समझ लेते हो तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आंसर उसका एक ही होता है, सिर्फ समझने वाले को आवश्यकता होती है। और इसमें अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए अमेरिका ने जो है 34 देशों का सहायता प्राप्त किया, लेकिन देखा जाए तो 34 देशों की सैनिकों को उसने अलग थलग ही रखा। सिर्फ 25% सैनिकों को उसने लिया, बाकी अपनी 75% सेनाओं को जो है उतार दिया। और इसमें WHW जो बुश थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ योगदान दिए। देखा जाए तो प्रथम खाड़ी युद्ध ने अमेरिका के सैन्य बलों और अन्य देशों के बीच पैदा हुए विशाल तकनीकी अंतर का उजागर किया, और यह अमेरिका बेखूबी बताना चाहता था पूरे विश्व को कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका के सैन्य बल जो है काफ़ी जो है युद्ध लड़ने में माहिर है, और ये बात साफ कर दिया। और यही अमेरिका चाहता भी था कि पूरे विश्व के सैनिकों को ये पता चल जाए कि उनका टेक्निक जो है बहुत ही बेहतर है। इसलिए उन्होंने 25% ही जो है 34 देशों के सैनिकों को लिया और अपने सैनिकों को उतारा, और उन्हें बताना ये चाहा कि हमारे सैनिक में उनके सैनिक से कहीं ज़्यादा हौसला है और कहीं ज़्यादा तकनीक है। तो ये जो अंतर उजागर करना चाहते थे ये प्रथम खाड़ी युद्ध में हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और उन्होंने और भी टेक्नोलॉजी के सबूतों को प्रदर्शित किया जब उन्होंने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इवन कि उन्होंने कंप्यूटर युद्ध भी बना दिया। इस युद्ध को अमेरिका ने कंप्यूटर युद्ध बना दिया। कंप्यूटर से ये युद्ध करते थे, कंप्यूटर से ही सारे जो है नियंत्रित करते थे, और ये विश्व को बताना चाहते थे कि हम सुपर पावर हैं। और व्यापक तौर पर देखा जाए तो इस युद्ध को जो है टेलीविज़न कवरेज भी दी गई, और ऊपर से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात था इस युद्ध को जो है वीडियो गेम युद्ध भी बना दिया। तो समझ सकते हो कि अमेरिका का प्रभुत्व तो बढ़ गया, इन्हीं कारण से जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो है जन्म हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी व्यू से आपको समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, उसको नोट करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो सोचिए कि आप अधूरा काम ही कर रहे हो। और त्रिपाण एसवी सेंटर हमेशा कहता है कि अधूरी जानकारी खतरनाक होता है, इसलिए समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है, अगर समझ में आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो जनरल सी बात है दूसरे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। और त्रिपाण स्टडी सेंटर का मोटिव तो आप जानते ही हो
कि जितना हो सके दूसरे बच्चों का हेल्प करना है, मदद करना है, ठीक है। और इस मदद करने में आप सहयोगी हो सकती हो। कहते हैं गलत बातों को तो आप बहुत अनुसरण करते हो, कभी अच्छे बातों का अनुसरण करके देखिए, बहुत मन में जो है संतुष्टि मिलेगी आपको, ठीक है। ये सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, जितना हो सके इसको जो है शेयर करने की भावना रखना है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लो। नहीं तो आपको पता है कि यहाँ पर बहुत से वीडियो हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, और आपको पता है तिरपान एनसीसी सेंटर सिर्फ बच्चों के लिए सदैव ही अग्रसर रहता है, और हर समय समय पर हर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर सोल्यूशन आती रहती है। तो आपको जो है हर चीज़ों का यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सब देखिए, सोचिए, समझिए।